Hello, dear students. As we were studying fluid mechanics, and in the previous video, we had studied about surface tension, molecular theory of surface tension, the examples of surface tension, the day to day phenomenon which is related with surface tension. And we had studied about surface energy, and we come to know that surface energy is equal to the surface tension. Today, we'll proceed further in that uh, concept of surface tension, and we'll find the excess pressure exerted by a liquid drop or inside a liquid drop. So here we'll be having a liquid drop, and as we know that, how does a liquid drop looks? It is spherical in shape. So if this liquid drop is spherical in shape and I'm considering its radius as r, this is radius r. So there will be some pressure inside the drop, that will be pi, and some pressure will be outside the drop, that is p naught. There will be a difference between the pressure which is inside and outside. So what I'm going to do is I am going to find the excess pressure, and to find the excess pressure will be pi minus po. That will be the excess pressure inside a liquid drop. We are talking about liquid drop. So I need to find the value of this, that is pi minus po. So for that, there will be an outward force which is acting because of the pressure inside a liquid drop. And for that pressure, I can find the outward force acting on the drop, on the drop, and it will be pi minus po. And if I'll multiply it by area, that is 4 pi r square, because I know that force is equal to pressure into area. This is the formula for force, and according to this formula, I got the outward force acting on the drop is pi minus po into 4 pi epsilon naught r. As there is the pressure inside the drop is greater than pressure outside the drop, so what I am going to find is I am going to find a small increment in its radius, and that increment is suppose delta r, कि इसकी जो रेडियस है वो डेल्टा आर से इंक्रीज हो गई. तो अगर ये डेल्टा आर से इंक्रीज हो गई, सो देर विल बी अ स्मॉल वर्क डन, दैट विल बी डेल्टा डब्ल्यू, एंड दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यही फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग. Force into displacement. What is the outward force acting? That is pi minus po into 4 pi r square, and if I'll multiply it by delta r, then I'll find the work done. कि भैया excess pressure की वजह से इतना work done हो रहा होगा. We have also studied a formula of surface tension in terms of work done in the derivation of surface energy, that surface tension is equal to the work done upon change in area. Work done upon change in area. So from here, if I'll find the work done, it will be tension into change in area. Change in area. So what is the change in area? So it will be T, and change in area means 4 pi r plus delta r ka whole square minus 4 pi r square. This will be the change. So I'll try to solve it. It will be T 4 pi. This will be r square plus delta r whole square plus 2r delta r minus of 4 pi r square. So here, as delta r is very small, so I can neglect this delta r square, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर जैसे मान लीजिए 0.002 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हुआ या का इंक्रीमेंट हुआ और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाएगी. सो वी आर नेग्लेक्टिंग दिस टर्म, and if I'll neglect this term, this r square will cancel out by 4 pi r square, because if I'll multiply it inside, it will be 4 pi r square, and this 4 pi r square will get cancelled out. So here work done will be T into 8 pi
4 to the 8, 8 pi r into delta r. So this work done must be equal to this work done. So if I'll equate both these equations, this is suppose equation A and this is equation B. If I'll equate A and B, I'll find Pi minus P0 into 4 pi r square into delta r. This will be equal to T into 8 pi r into delta r. So delta r will get cancelled out. R will get cancelled out from R. Pi will get cancelled out from pi. And this will be 2. So Pi minus PO, the expression will be 2T upon R. So this will be the excess pressure inside a liquid drop. Next is the second case. If I need to find the excess pressure inside a liquid bubble, this is a drop. That means the fluid is fully filled over here. And if we'll talk about the bubble, here we'll have two free surfaces. One free surface is inside and another free surface will be outside. So there will be an excess pressure, that is Pi minus P naught. Same thing we have to calculate. So for calculating this, again, we have to find the work done. And for work done, pressure will be inside. And if the radius is r, जैसा कि पिछले वाले केस में था, तो यहाँ पर जो हमें वर्क डन मिलेगा, मतलब डेल्टा डब्ल्यू, जो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन मिलेगा, दैट विल बी पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 pi r square into delta r. This will be the work done. यही हमारी फोर्स लग रही थी और इसी डेल्टा आर का इंक्रीमेंट हो गया. ये देखो डेल्टा आर का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया. लेकिन जब हम सरफेस टेंशन से वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे, सरफेस टेंशन विल बी हैविंग टू फ्री सरफेसेस, राइट. अगर टू फ्री सरफेसेस होंगे तो W विल बी इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए, और चेंज जो होगा वो यहाँ पर 2 डेल्टा ए हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स एक फ्री सरफेस ये और एक फ्री सरफेस आउटर वाला, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए. और हम पहले ही डेल्टा ए पिछले वाले डेरिवेशन में हम लोग निकाल चुके हैं. वो जो हमारे पास आया था, देखो ये डेल्टा ए हमें यही मिला था, दिस वाज डेल्टा ए, यानी कि यहाँ पर 2 इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, दिस विल बी द एक्सप्रेशन. सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 16 pi r delta r into t. So this will be the work done. एक ये वर्क डन मिला, एक दूसरा वर्क डन ये मिला. दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 pi r square into delta r, this will be equal to 16 pi r into delta r into t. So delta r will cancel out, r and r will cancel out, this will be 4 times. So pi minus po will be equal to 4t upon r. मतलब बबल के अंदर प्रेशर मुझे एक्सेस प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपैरेटिव टू द लिक्विड ड्रॉप. सो आई होप ये दोनों डेरिवेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए बेटा. नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट कैपिलैरिटी. व्हाट इज कैपिलैरिटी? एज यू पीपल ऑल नो, जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में हम लोग रूट्स में वाटर या फूड या जो भी चीज़ हम सप्लाई करते हैं वो लीफ के एंड तक पहुंच जाता है ड्यू टू दी जाइलम. तो वहाँ पर हमें क्या मिल रही होती है, वहाँ पर फाइन बोर बनी हुई होती है, बहुत ही पतले पतले से पाइप होते हैं, पाइप की फॉर्म में होते हैं. और इन्हीं पाइप के थ्रू वो लिक्विड का क्या देखने को मिलता है, हमें राइज देखने को मिलता है. जैसे टॉल का एक एंड अगर आप बकेट में डाल दें तो थोड़े टाइम के बाद आप क्या देखेंगे, वो जो टॉल है वो बहुत ऊपर तक गीली हो चुकी होती है. दैट इज बिकॉज ऑफ दी कैपिलरी एक्शन, जो कि आपको राइज और फॉल देखने को मिलेगा. टिश्यू पेपर है, कोई भी टिश्यू पेपर अगर आपने एक साइड में एक कोने में डिप कराया है, यू विल फाइंड कि वो टिश्यू पेपर पूरा का पूरा क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, बिकॉज वहाँ पर आपको कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है. सो दिस इज कॉल्ड दी कैपिलरिटी. इंक पेन होता है, इंक पेन की आपने निब देखी होगी, वो बीच से कटी हुई होती है, कुछ इस शेप में होती है और यहाँ पर बीच से ये कटी हुई होती है. तो ये इसकी वजह से आप कहीं पर भी अगर इंक ड्रॉप अगर इसको मिलती है तो वो इंक ड्रॉप को क्या कर लेता है, ये पेन हमारा सक कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर उन दोनों के बीच में, इस निब के कट करने के बीच वजह से यहाँ पर एक फाइन बोर बन जाती है और उस बोर की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, लिक्विड का राइज देखने को मिलता है. दैट एक्शन इज कॉल्ड कैपिलैरिटी. अब कैपिलैरिटी के बाद अगर हम बात करें तो हमें दूसरी चीज़ जो देखने को मिलती है, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? आपने देखा होगा कई बार जब आप अपने वाटर को ऊपर तक फिल कर देते हैं तो यू फाइंड अ मिनिस्कस, एक मिनिस्कस आपको देखने को मिलता है कि पानी जो है वो ऊपर तक राइज हो चुका है. तो यहाँ पर जो भी आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है,
that is the tangent of the liquid surface at the point of contact makes with the solid surface inside a liquid. मतलब लिक्विड के अंदर का ये जो सॉलिड सरफेस है, ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। तो हमें ये तीन तरीके के मिनिस्कस देखने को मिलते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स मिनिस्कस, ये एक और हमें मिनिस्कस देखने को मिलेगा, कुछ लिक्विड्स में हमें इस तरीके का मिनिस्कस देखने को मिलता है। तो दिस विल बी द एंगल ऑफ कांटेक्ट इनसाइड द लिक्विड सरफेस वाला एक सरफेस, और यहाँ से हमने ये टेंजेंट जो ड्रॉ किया, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज कॉनकेव मिनिस्कस। यहाँ पर हमें बिल्कुल फ्लैट सरफेस देखने को भी मिलता है। ये जो सरफेस है, यहाँ पर हमें एंगल जो देखने को मिलेगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो ये हमें मिनिस्कस क्यों मिलते हैं? देखो बेटा, यहाँ पर दो तरीके की फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। एक है आपकी कोहेसिव फोर्स और दूसरी होती है आपकी एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स की अगर हम बात करें तो कोहेसिव फोर्स क्या होती है? सेम पार्टिकल्स के बीच में लगती है। मतलब वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है दैट विल बी दी कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स जो इस सरफेस की किसके साथ लग रही है? वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोल देंगे? एडेसिव फोर्स बोलेंगे। तो इस वाले केस में जब हमें कॉन्वेक्स मिनिस्कस मिलेगा तो यहाँ पर हमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा देखने को मिलती है एडेसिव फोर्स से, इसलिए हमें जो मिनिस्कस मिलता है वो कॉन्वेक्स मिलता है। इस वाले केस में हमारी एडेसिव फोर्स जो होती है वो बड़ी होती है कोहेसिव फोर्स से, इसलिए हमें जो यहाँ पर मिनिस्कस देखने को मिलेगा दैट विल बी कॉनकेव। यहाँ पर एडेसिव फोर्सेस जो होंगी वो आपकी बिल्कुल बराबर होंगी किसकी? कोहेसिव फोर्सेस के बराबर आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे एक्शन को, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो जहाँ कहीं पर भी हमें प्योर वाटर और क्लीन ग्लास सरफेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें जीरो मिनिस्कस, जीरो सरफेस एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास सरफेसेस जीरो देखने को मिलेगा। एब्सोल्यूट एंगल भी, इसको हम एक्यूट एंगल भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें ऑब्ट्यूस एंगल मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक्यूट एंगल मिल रहा है, यहाँ पर हमें राइट एंगल देखने को मिल रहा है। तो ये जो एंगल्स होते हैं इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो अब जो भी लिक्विड का राइज हो रहा है, कैपिलरी एक्शन हमें देखने को मिल रहा है, उस कैपिलरी एक्शन की अगर हम बात करें तो कितनी हाइट तक वो लिक्विड का राइज हमें देखने को मिलेगा। तो राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब हमें आइडेंटिफाई करनी है कि कितना हमें राइज देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए सपोज दिस इज द कैपिलरी ट्यूब, और इस कैपिलरी ट्यूब में वाटर फिल होगा। कैपिलरी ट्यूब सिर्फ हम पढ़ने के लिए इतनी बड़ी बना रहे हैं, इसकी लेंथ बहुत बड़ी होगी लेकिन इसका डाया बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। ऐसे ट्यूब को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिलरी ट्यूब। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर मैंने कोई भी एक लिक्विड फिल कर रखा है, तो ये जो भी लिक्विड है, ये लिक्विड का मुझे राइज देखने को मिलेगा। और मान लीजिए वो राइज जो हुआ वो एक कॉनकेव मिनिस्कस की तरह राइज देखने को मिला मुझे। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर सरफेस टेंशन लग रही होती है, सरफेस टेंशन हमेशा फ्री सरफेस की तरफ लगती है। तो जब सरफेस टेंशन फ्री सरफेस की तरफ लगती है तो एक टेंशन मुझे फ्री सरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये मुझे एक टी सरफेस देखने को मिलेगा एंड दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। यहाँ पर भी अगर मैं एक टी का सरफेस टेंशन ऑब्जर्व करूँ, हालांकि ये दोनों सेम सरफेस है तो टी एक ही तरफ लग रही होगी। यहाँ पर मुझे जो सरफेस टेंशन दिखाई देगी वो टी कॉस थीटा दिखाई देगी, और यहाँ पर जो मुझे सरफेस टेंशन दिखाई देगी दैट विल बी टी साइन थीटा। So the surface tension responsible for the rise of the liquid will be T cos theta. यही राइज का कारण है, यही रीजन है। अब सरफेस टेंशन की वजह से कितनी फोर्स लग रही होगी, तो हमें पता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन लेंथ। और अगर ये फोर्स अपॉन लेंथ है तो ये जो भी हमारा रेडियस होगा इसी पर्टिकुलर रीजन में, मतलब हर जगह पर, क्योंकि ये 3D फिगर बनेगा तो ये ऐसा ही सरफेस मुझे देखने को मिलेगा, मतलब हेमिस्फेयर बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी लेंथ अगर मैंने, मान लीजिए इसकी रेडियस अगर मैंने आर अज्यूम की है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर पर ये टेंशन लग रही है। और कितनी टेंशन लग रही है? टी कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज, क्योंकि ऊपर की तरफ लिक्विड को हम लिफ्ट कर रहे हैं। दिस विल बी एफ अपॉन लेंथ इज 2 पाई आर। सो फोर्स विल बी टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। ये मुझे यहाँ पर फोर्स देखने को मिलेगी। अब इस फोर्स ने काम क्या किया? इस फोर्स ने इस लिक्विड को राइज किया ऊपर तक। और जो ये लिक्विड को इसने राइज किया, सपोज दिस इज द हाइट टिल विच द राइज ऑफ लिक्विड अकर्स। जब इतनी हाइट तक लिक्विड का राइज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है जितना भी इसने वेट लिफ्ट किया उतनी ही फोर्स लगी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर वेट की बात करूं तो वेट ऑफ द लिक्विड राइज, दिस डब्ल्यू इज बेसिकली द वेट ऑफ
liquid rice. This is the weight of liquid rice. So W will be equal to mg मुझे देखने को मिलेगा if the density is rho and V is the volume of the liquid rice. So W will be equal to, this will be rho into V into G. ऐसा ही देखने को मिलेगा. वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे वॉल्यूम देखने को मिलेगा रो इंटू यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी. मुझे यही वेट देखने को मिलेगा यहाँ पर. और अगर मुझे यही वेट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन को हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भी तो हमें लिक्विड देखने को मिलेगा, इस वाले सेक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. और जब हम ये नेग्लेक्ट कर देंगे तो यही हमारा वेट हो जाएगा. ये हमारी फोर्स हो गई, ये हमारा वेट हो गया. ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस होने चाहिए, तभी इतना ही लिक्विड राइस देखने को मिलेगा हमें. सो इट विल बी टी कॉस थीटा इंटू 2 pi r. दिस विल बी इक्वल टू रो इंटू pi r square h into g. So pi and pi will get cancel out, r and r will get cancel out, and it will be h की वैल्यू अगर आप देखें यहाँ से ध्यान से तो h will be 2t cos theta upon r rho g. So this is the rise of liquid. मतलब कितनी हाइट तक राइज होगा, तो rise of liquid कितनी हाइट तक होगा, इट डिपेंड्स ऑन 2t cos theta upon r rho g. तो इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर ये क्या कर रहा होगा बेटा, डिपेंड कर रहा होगा. सो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेटा समझ में आई. दिस कंप्लीट्स योर फ्लूइड मैकेनिक्स. आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पर कंप्लीट होती है. रेस्ट in the next video we'll learn about the thermodynamics, that is thermal properties of matter, calorimetry वगैरह इन सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे. Till then, thank you so much and God bless you all.